Hello students, welcome back again. Today we are going to discuss about SST of 8th class, and in this segment we are going to discuss about a lesson that is a lesson of geography. And name of the lesson is what? That is the agricultural practices in India and in world also. If we talk about agriculture, we got a term that it is an oldest and primary activity that was ever tried by human being. It's okay, we understand easily. But what are the achievements of India? What are the achievements of India in the field of agriculture? We must get an information about it first of all. Listen, here I have written something. That is what? Varghese Kurian, founder of Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, means GCMMF. GCMMF is an organization in India which is related to milk. And this organization is also a primary apex organization that control Amul Food Management. This organization and Varghese Kurian also credited to manage the white revolution in India, and he is contributed a lot to make India largest producer of milk in the world. So it is an important information for you that if you want to know what are the achievements of India in the field of agriculture and agriculture related activity, so it is an information for you. Now come back to the lesson. Actually let's start the lesson. Lesson what says? It says agriculture. Agricultural practice is the name of the lesson. So first of all we must learn what is actually the agriculture. We all know very well agriculture is the process to growing the crops by which we get the plentiful food or for some commercial activities. We know very well that we grow crops, but primary and oldest activity practiced by humankind, agriculture और important क्यों है? क्योंकि सबसे पहले अगर कोई एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग के द्वारा या हमारे ह्यूमन काइंड के द्वारा कभी ट्राई की गई थी, एवर इट वाज ट्राइड, दैट वाज व्हाट? दैट वाज द एग्रीकल्चर. सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख एक्टिविटी जो ह्यूमन काइंड के द्वारा कभी शुरू की गई और आज भी की जा रही है, दैट इज द एग्रीकल्चर. One more thing is noticed here, that is practiced in over 49% of Earth's land surface and employs more than 50% of population in the world. Means Earth का land surface जितना भी है उसके 49% पर we practice agricultural activities, and agriculture provides the employment to the population that is more than 50% of the world. 49% लैंड सरफेस पर हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी प्रैक्टिस करते हैं, एंड इट प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 50% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. ओके, नाउ कम व्हाट एग्रीकल्चर एक्चुअली प्रोवाइड्स टू अस. एग्रीकल्चर हमें वास्तव में प्रोवाइड क्या कराता है? मैंने बताया कि भैया ये हमें क्रॉप्स को ग्रो करता है. मैंने कहा क्रॉप्स ग्रो करने का प्रोसेस जिसमें हम पेट भरने के लिए भोजन या कहीं बेचने के लिए कमर्शियल पर्पस के लिए कोई फसल को उगाते हैं, दैट इज नॉन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर से एक्चुअल में हमें मिलता क्या? व्हाट इट्स इंपॉर्टेंट इन अदर फील्ड्स, हाउ मच अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. चलिए समझते हैं. सबसे पहले प्रोवाइड्स 90% ऑफ फूड एंड बेवरेज. जितने भी हमारे ड्रिंकिंग होती हैं, ड्रिंक्स होती हैं, पेय पदार्थ जिन्हें इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं, दूध है, आपके पास कोई मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, वो सभी कहां से आती हैं? दोज वी गॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर एज वेल एज फूड. मींस 90% ऑफ बेवरेज एंड फूड वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर. नेक्स्ट, बल्क ऑफ क्लॉथिंग. क्लॉथिंग की अगर बात की जाए, हमारा कपड़ा मैक्सिमम बल्क मींस बड़ी मात्रा में जो हमारे कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं, जो हम लोग पहनते हैं,
अगर वॉल की बात की जाए, वूल, कॉटन, मैनी सिल्क, these all are practiced from where? These all are practiced from the activity that is also known. Again, that is the agriculture. Next and last is what? Large amount of raw material. When we talk about industry, industrial development in India, we will get an information that iron industry is the primary industry because all the industries are dependent on it. इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम पढ़ेंगे कि आयरन इंडस्ट्री जो है वो सभी इंडस्ट्रीज का क्या क्या है? प्राइमरी। या प्राइमरी ना कहकर आप क्या कहेंगे? वो प्राइमरी इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि बाकी सभी दूसरी इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बट हियर वन मोर थिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट? The agriculture provides large amount of raw material for food industry, for clothing industry, for raw material means many other industries. अगर बात की जाए फर्नीचर इंडस्ट्री की बात की जाए, many other industries. So it provides raw material in large amount to the entire world industries. Okay, so these are some aspects that are being provided by the agriculture to us or to humankind for the development of better living. Now let's talk about factors affect agriculture. Means हमने पढ़ा एग्रीकल्चर क्या है, समझ गए। एग्रीकल्चर कब से प्रैक्टिस किया जा रहा है, हम ये भी समझ गए। अब हमें समझना है कि वो फैक्टर्स जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब उन फैक्टर्स में सबसे पहले क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट की जलवायु कैसी है किसी जगह की? टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट इज एक्चुअली दीज आर द बेसिस टू व्हाट? दीज बोथ आर द बेसिस टू डिफाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी प्लेस की क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने किस चीज की जरूरत पड़ती है? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इन चीजों से हम पता लगाते हैं हाउ व्हाट काइंड ऑफ climate would be found at a particular place. Now, climate कैसी है? क्लाइमेट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? those are temperature and rainfall. मान लीजिए एक जगह जहां पर टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर बहुत हाई होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहां पर किस तरह की फसलें उगाई जाएंगी? वो फसलें जिन्हें क्या होगा? इन्हें पानी की और नमी की कम आवश्यकता होती है। अब वर्षा ऋतु की अगर बात की जाए, देयर इज टेम्परेचर व्हाट? एक्सट्रीम टेम्परेचर मींस टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, सो वहां पर प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होता है, तो वहां पर वो फसलें सर्वाइव कर पाती है, वो पेड़ पौधे को वेजिटेशन सर्वाइव कर पाता है जो पानी में बहुत ज्यादा समय तक जीवित रह सके। तो क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट that define the crops or the vegetation of a place. So सबसे पहले क्या प्रभावित करता है एग्रीकल्चर को? दैट इज द क्लाइमेट। इस तरह की क्लाइमेट कहां पर पाई जाती है? नेक्स्ट दैट इज द रिलीफ एंड ड्रेनेज। रिलीफ एंड द ड्रेनेज। ड्रेनेज को अगर मैं आपको इन अदर वर्ड्स कहूं तो आप क्या कह सकते हैं? दैट इज इरिगेशन फैसिलिटीज या वाटर फैसिलिटीज। कैसी? तो ये कहता है रिलीफ एंड ड्रेनेज मींस किस जगह की ऊंचाई कैसी है? वो जगह प्लेन है, प्लेटियस है या माउंटेनियस है या कैसी है? या बेस है, खाड़ी है, ठीक है, समझिए। प्लेन्स आर मोर फेवरेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। प्लेन अगर बात की जाए, प्लेन जैसे इन इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन इन द वॉट? इन द वेस्ट इंडिया, एक्चुअली yes, east of India, those are more favorable for what? For the agricultural practices, because those are plains which are drained by the water of Ganga and Brahmaputra rivers. Okay, so these are more favorable places on the in India which are more favorable to grow the crops. Next,
Drainage means yes, nearness to a good drainage system. Nearness to a good drainage system. मान लीजिए एक जगह जहां पर पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो वहां पर क्या होगा? The crop that need water at a certain time, after that it will be fulfilled because the drainage facilities are quite better over there. So it will be what? There the possibilities of growing crops would be more. Next term, that is the soils. Particular type of soil is favorable to grow particular type of crops. As black soil is also known as cotton soil. Means black soil को हम किस नाम से जानते हैं? Cotton soil के नाम से भी जानते हैं. And many other soils are also there. Alluvial soil is known as the most favorable soil to grow the crops, grain crops. Okay, so these are most crops need specific soil type. किस तरह की टाइप की soil है वो डिपेंडेंट करता है एक तरह की फसल को उगाने के लिए. Next thing that we are going to talk, that is human beings. These all are the factors. These are three factors. Although these are natural factors, but there would be a little modification in these aspects, that is by the human beings. Human being एक ऐसी प्रजाति है इस अर्थ पर जो इन एस्पेक्ट्स में क्या कर सकती है? मॉडिफिकेशन कर सकती है. अब वो मॉडिफिकेशन क्या है? मींस किसी जगह पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रभावित होती हैं ह्यूमन बीइंग से. मींस सोशल, लोगों का सोशल स्टेटस कैसा है, सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी में क्या सिखाया जाता है, वहां के लोग सोशली इन चीजों से बाउंडेड होते हैं. मान लीजिए सोसाइटी कैसी है? दैट इज द ट्राइबल सोसाइटी. सो पीपल इन द ट्राइब, जो पीपल ट्राइब्स में होते हैं, ट्राइबल सोसाइटी में होते हैं, वो कैसे होते हैं? दे आर नेचर कमिटेड पीपल एंड दे लिव विद हार्मनी विद द नेचर. वो लोग क्या हार्मनी से रहते हैं नेचर के साथ. सो इट मींस ऑल द नीड्स आर फुलफिल्ड विद द नेचर ऑफ देम और देम. और वो लोग कहीं ना कहीं देयर प्राइमरी एक्टिविटी वुड बी व्हाट? वाज रिलेटेड टू फार्मिंग और एग्रीकल्चर. सो पहला सोशल फैक्टर ये है किस तरह के लोग रहते हैं, क्या सोसाइटी है, वहां पर लोग किस चीजों में ज्यादा एंगेज रहते हैं. इकोनॉमिक फैक्टर. क्या इकोनॉमिक फैक्टर? मान लीजिए एक जगह एक सोसाइटी है, उसको इकोनॉमिकली क्या है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप्ड जगह है. अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई न्यू दिल्ली की आपसे मैं बात करता हूं, न्यू दिल्ली का इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? इट मे बी नोन एज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया. Another thing, many of the industries are established over there as well as in Bangalore. These are Mumbai also. These are some prestigious cities or you may say the cities of the India. So वहां पर क्या, वहां का इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? वहां का इकोनॉमिक फैक्टर है कि वहां पर लोग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा रहते हैं और they have adopted their own business. They are what? They are connected with each other from the economic facilities, economic aspects. तो इकोनॉमिकली किस जगह पर किस तरह की अहमियत है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा डिसाइड की जाती है या डिफाइन की जाती है. इसके बाद क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर्स. क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर्स मींस अगर आपसे बात की जाए मैप ऑफ इंडिया, the boundaries of India, political map of India. So in this segment we shall be discussing about political factors. Means what kind of favorable conditions are being provided by the politician to a person who is the native of a particular place is also dependent on by the human being. It affects the agriculture. Next, that is technical knowledge. That is the technical knowledge. There are many crops which need technical knowledge. As we talk about mushroom crops, so it needs a different environment. It needs the different environment, and many other crops are over there. So human beings are what? These are somewhere modifying these factors and through their
practices in India, also in the entire world. Next we are going to discuss what that is the types of farming. Next segment that we are going to discuss that is the types of farming. Means इंडिया में और इस वर्ल्ड में कितने तरह की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मिंग के दो टाइप्स होते हैं. पहला सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा कमर्शियल फार्मिंग. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू टर्म्स मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. Subsistence farming is related and is also known as the farming that is practiced to fulfill the need of human beings. Yeah, in other words, you may say what the crops those are grown to get believable food are known as subsistence crops, and this process is known as subsistence farming. Next one that we are going to discuss that is the commercial farming. That is the commercial farming. In this segment, commercial farming is what? The farming, the agricultural practices which are practiced by human being by a farmer to grow crops for personal use, and as well as the main motto is to gain more profit from there is known as commercial farming. The crops that are grown by the purpose of business are known as commercial farming. ठीक है? Now let's discuss about the type of subsistence farming. Subsistence farming का फर्स्ट क्या है? That is first type क्या? Sedentary primitive farming. Sedentary primitive farming. ये क्या कहता है? ये कहता है वो फार्मिंग जहां पर प्राथमिक रूप से बीजों को साधारण तरीके से जमीन में गिराकर भरपेट भोजन उगाया जाता है. वहां पर नेचुरल फर्टिलाइजर्स मैन्योर का यूज किया जाता है as the night waste. These are known as sedentary primitive farming. यहाँ पर जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है that is not much more. It is only to fulfill the needs. Next that is the intensive farming. अब ये इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? इंटेंसिव फार्मिंग वो होता है एक जगह जहां पर पॉपुलेशन तो है कितनी? That is of the 10 people. पॉपुलेशन है, it's only for example. पॉपुलेशन है वहां पर 10 people. But the field that is available over there, that is what? The field that may complete the demand of the food of 6 people only. वो जो डिमांड को कंप्लीट कर सकता है वो 6 लोगों की डिमांड को कंप्लीट करता है. अगर नेचुरली बात की जाए, प्राकृतिक रूप से या इन जनरल प्रोसेस अगर उसकी बात की जाए तो 6 लोगों की डिमांड को कंप्लीट कर सकता है, फूड की डिमांड को. अब यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर कुछ इंटेंसिव मेथड्स यूज किए जाते हैं. यहाँ पर इस फील्ड की इंटेंस देखभाल की जाती है. यहाँ पर फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन मेथड्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है. लेबर इंटेंसिव ये फार्मिंग होती है. लेबर इंटेंसिव मींस यहाँ पर लेबर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. दैट इज ह्यूमन लेबर. लेबर का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो बाकी के 4 लोग हैं उनकी भी फूड की डिमांड कंप्लीट हो सके या फुलफिल हो सके. तो इंटेंसिव फार्मिंग क्या कहती है? इंटेंसिव फार्मिंग वो फार्मिंग जहां पर इंटेंस मेथड्स का यूज किया जाता है टू ग्रो या टू एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप. नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं, इसे क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. अब ये क्या होता है? इट इज प्रैक्टिस्ड इन द ट्राइबल एरियाज. फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल
who do not live permanently at a place practice such kind of agricultural practice या such kind of farming activity। वो लोग जिनका परमानेंट कोई क्या नहीं होता है, जिनका परमानेंट कोई सेटलमेंट नहीं होता है, वो लोग जब खानाबदोश होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ फील्ड को सबसे पहले क्लियर करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें काटते हैं। अब जो वहां पर वेस्ट बचता है या मटेरियल बचता है, रेस्ट मटेरियल होता है, उसमें वो क्या कर देते हैं, सुखाने के बाद उसमें आग लगा देते हैं, उसे जला देते हैं। और उसके बाद जब उससे ऐश बचती है, तो ऐश बचती है, उस ऐश को क्या हो जाता है, दैट इज बीइंग थ्रोन इन द एंटायर फील्ड ट्रैक्ट ऑफ द लैंड, जहां पर वो वर्क करता है एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मैन्योर, और फिर वहां पर फसल को उगा दिया जाता है। दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज नॉट परमानेंट फार्मिंग एट अ प्लेस, ये एक जगह पर परमानेंटली नहीं होती है फार्मिंग एक्टिविटी, इट इज फॉर सम टाइम, sometime it is practiced for 2 years, 4 years, and maximum it might be yes, it might go for 7 or 8 years. Okay, after that a farmer left this place and moved to another place to clear it. Okay, in this process it is what, it is land, this land is left empty. In other words you may say this land is left fallow. Fallow means ये अपनी जो इसने अपने न्यूट्रिशन को डिफिशिएंट किया है, उन न्यूट्रिशन को वापस ये रिकैप्चर कर ले। नेक्स्ट एलिमेंट कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में पहला क्या है, एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग। प्रेरी का नाम सुना होगा आपने, वहां पर क्या होता है, द ग्रेन इज व्हाट, द ग्रेन इज ग्रोन इन द होल, द ग्रेन इज ग्रोन इन द ह्यूज अमाउंट, इन द ह्यूज अमाउंट, वहां पर अनाज उगाया जाता है बड़ी मात्रा में, टू सेल इट इन द मार्केट टू गेट सम प्रॉफिट, इसे मार्केट में बेचने के लिए और वहां से कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए इसे क्या किया जाता है, दिस इज नोन एज एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग। मींस बहुत बड़ा ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, बड़ी बड़ी मशीन्स का वहां पर यूज होता है, टू फ्रॉम द टाइम ऑफ सोइंग द टाइम ऑफ व्हाट, cultivation, up to the time of cultivation and up to the time of then when it is ready to what, when it is ready to harvest, up to those times it is used, there are huge machineries are used. Mixed farming. Mixed farming means a place, a farming where are various crops are grown throughout the year is known as mixed farming. Next is dairy farming. Dairy farming means the farmer where many of the animals are reared to get their milk products, and sometimes the sheep are reared in many big huge dairy farms which are reared to get the wool and to get many other products which are being provided by these animals, is known by the name of dairy farming. Next is market gardening and horticulture. It is what, it is a farming where many of the products which are going to be sold in the market, what as flowers and many other kinds. Next, that is plantation farming. Plantation farming means the farming that is practiced by the farmer where throughout the year same kind of plant, same kind of farming is being practiced by a farmer to grow crop, is known by the name of plantation farming. जहां पर फार्मर एक तरह के प्लांटेशन मींस एक तरह के प्लांट्स को एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड में उगाता है और वो लगभग पूरे साल तक में उगाता है, that is known by the name of plantation farming. So these are some types which we discussed today. In next segment we shall be going to discuss about these types in details. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you. Have a good day.